So dear student, let's start with next. That is page number 76, I think. So we have to start with first paragraph only. Studied in our previous lecture, the time was 9:10 a.m. Paper was to be started at 9:15. So it was at 9:10 a.m. When the governor switched on the receiver. Also explained that governor had switched on the receiver to instruct Jackson so that he must be able to convey the message to Evans about bug. Bug, I think I had already explained in detail. This concept is crystal clear. तो वो हाईलाइट कर रहा है, जैक्सन को कह रहा है कि उसको इंस्ट्रक्ट कर देना, किसको इंस्ट्रक्ट कर देना, इवेंस को, कि यहाँ बग लगाया हुआ है, टेम्परेरी परमानेंट बेस पे नहीं है, और लगना भी चाहिए था. लिटिल प्रिकॉशन, आई थिंक इट वाज क्लियर. As if Evans wouldn't spot it. So you have to look at the meaning of this particular sentence with exclamation. यानी कि इसका सिग्नल काफी तरफ जाता है, इस जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं, और जो जो बेसिक सिग्नल जाता है, कहते हैं जैसे इवेंट्स को पता ही ना हो ये पॉइंट. और एक ये भी हाईलाइट करता है इस पॉइंट को कि अगर जब इसको पता चलेगा, ही वुड बी इरिटेटेड because he was criminal, he could be able to just cross any limit. तो इसलिए जैक्सन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नर ने 9:10 AM पे रिसीवर ऑन किया और कहा कि इसको बता दो इवेंट्स को कि हमने टेम्पररी अरेंजमेंट किया हुआ है, बट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू रिकॉर्डिंग टू बी डन सीक्रेटली. तो आई थिंक इस बात का गवर्नर को नहीं पता था कि इवेंट्स को पहले ही पता चल चुका है. फिर वो खुद ही सोच रहा है कि कुछ ज्यादा ही नहीं हम कर रहे हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा स्कूल का एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहा हो, वैसा हम कर रहे हैं. यानी choosing his reasoning power, governor was thinking and thinking and thinking so far as this particular paragraph is concerned. तो ये पॉइंट भी ऐड कर रहा है कि अगर उसको भागना होता तो रिक्रिएशनल ब्लॉक से भी भाग सकता था, वो बड़ा आसान था वहां से भागना, लेकिन वो नहीं भागा. He wanted to highlight that particular कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं है इस बार जेल को तोड़ के भागने की. I think crystal clear up to this particular point. Let us start with the next. And there he was now sitting in a locked cell. All the prison officers on the alert. Two more locked doors between his cell and the yard. Now just look at the situation. Just look at the venue where he was, the time of his examination. तो कहाँ था वो लॉक्ड सेल में था, और बाहर all the prison officers were just inspecting vigilantly. Prison officers were on the alert. Then just look at the next. Two more locked doors between his cell, and two more locked were there between his cell and the yard. यार्ड और उसके सेल के बीच में दो और डोर्स थे जो कि लॉक्ड थे. With a wall as high as a haystack. और यार्ड की जो वॉल थी, I think these words are used to highlight that it was big wall. जो यार्ड की बाउंड्री वॉल थी, that was very big. Haystack you will have to look at, जिसको वैसे हिंदी में बोला जाए तो सूखी घास के ढेर को बोलते हैं. तो ये हाईलाइट कर रहा है ये जो वर्ड है कि वो यार्ड की वॉल थी was big. You have to look at कि भागने के या जंप करने के चांसेस नहीं थे कि वैंस वहां से जंप करके भाग जाएगा. Yes, Evans was as safe as houses. Just look at the last sentence of paragraph 1 of page 75. Yes.
Events was as safe as houses. Why this word yes is used? In order to give 100% confirmation to that particular point. What was the particular point? You will have to look at point of the safety of events, that he was not able to run out of the jail at any cost. Just look at events was as safe as houses. Now just look at as safe as houses. ये बेटे इसको नोट कर लेना, ये 100% सेफ के लिए यूज किया जाता है. यू हैव टू लुक एट ब्रिटिश में जो इसका मतलब जो होता है एज सेफ एज हाउसेस का मतलब होता है कि 100% सेफ. I think you are able to note it down. Very tough vocabulary you have to look at. Now look at the second paragraph of the same page. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. Now here again, governor was thinking and thinking and thinking because he was worried about the actions and reactions of events during examination. बहुत चिंतित है यहाँ पे गवर्नर. तो क्या सोच रहा है? Just look at. Anyway, if we look at this particular word, you have to look at the things फिर भी. It would not be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. गवर्नर जी सोच रहे हैं कि अगर नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स होता है कि नेक्स्ट आवर्स. नेक्स्ट आवर्स का मतलब नेक्स्ट कुछ घंटों के लिए, कुछ टाइम के लिए. कपल ऑफ आवर्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू लुक एट टाइम ऑल्सो. यानी कि यहाँ गवर्नर जी सोच रहे हैं कि कोई ट्रबल वाली बात नहीं होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी. टू हैव द रिसीवर टर्न्ड ऑन, अगर रिसीवर को ऑन रखा जाए अगले कुछ टाइम के लिए, अगले कुछ मिनट्स के लिए, अगले टाइम पीरियड के लिए. यानी he wanted to highlight that particular point also. So I think you are able to understand this particular point. Just look at the viewpoint of governor here. He was thinking and thinking on that particular line that receiver should be turned on for the next couple of hours. Couple of hours मैंने कहा कि next कुछ time के लिए. Or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to. Was it? Interrogation. Again, just look at the viewpoint of governor here. It wasn't as. यहाँ पे गवर्नर जी क्या सोच रहे हैं? डीप थिंकिंग में इन्वॉल्व हैं, डीप रीजनिंग पावर अपनी यूज कर रहे हैं. जस्ट थिंकिंग कीनली. कुछ सुनने के लिए तो नहीं होगा. यानी he wanted to highlight that particular point that during examination hours, यानी कि 2 hours were meant for examination. Next 2 hours were meant for examination. उस टाइम कोई सुनने वाली पॉइंट तो नहीं होंगे. यानी यहाँ पे वो हाईलाइट करना चाहता है कि there would be pin drop silence during examination hours. Was it? Question tag लगा रखा है बेटा. तो he wanted to look at the confirmation. He wanted to highlight that particular point कि अगर रिसीवर कुछ देर ऑन भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई आवाज तो आनी नहीं. क्योंकि एग्जामिनेशन आवर्स में कोई आवाज तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे गवर्नर जी. Amongst the other things, and invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. I think you are able to understand this particular point. Instantly, ये समझ आ गया होगा बेटे आपको पॉइंट. फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ कि इन्विजिलेटर की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होती है? क्या ड्यूटी होती है? टू मेंटेन साइलेंस. जो
इन्विजिलेटर कोई एग्जामिनेशन लेने के लिए यानी ड्यूटी दे रहा है, एग्जाम चल रहा है, तो उसकी एक सिंसियर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टू मेंटेन साइलेंस इन द एग्जामिनेशन रूम। तो ताकि जो है पेपर जो है अच्छे तरीके से हो सके। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर। अमंगस्ट द अदर थिंग्स बाकी भी ड्यूटीज होती हैं इन्विजिलेटर की, आंसर शीट देनी, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टैंप्स लगवानी, नंबर ऑफ ड्यूटीज आर देयर। तो उसमें एक कहते ड्यूटी क्या होती है, टू जस्ट मेंटेन टेस्ट साइलेंस, फर्स्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी इन्विजिलेटर। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ गवर्नर जी इस पॉइंट को सोच रहे हैं कि टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है अगर कुछ घंटों तक मैं रिसीवर को ऑन रखूं। आई थिंक बट डैश 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 बट स्टिल दैट लिटिल nagging doubt might Evans try to take advantage of McCleary, get him to smuggle in a chisel or two, or a rope ladder, or and dash. Just look at this particular sentence. Very tough. Try to understand the meaning of it. But, लेकिन, फिर लेकिन, फिर भी, लेकिन क्या लेकिन? Still that little nagging. लेकिन थोड़ा सा जो एक नेगेटिविटी है, जो थोड़ी सी परेशान करने वाला डाउट है, to highlight this particular sentence with sign of exclamation, क्योंकि here the governor is deeply worried. तो टेंशन के कारण कह रहे कि कुल पॉइंट तो है परेशान करने वाला थोड़ा सा। क्या? अब उस पॉइंट को देखिए जो वो सोच रहे हैं। जस्ट लिसन दैट, might Evans try to take advantage of McCleary. कहते हो सकता है इवेंस कोशिश करे McCleary का फायदा उठाने का, क्योंकि वो क्रिमिनल टाइप होता है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड होता है, बड़ा श्रीव्ड होता है नेगेटिविटी करने में। तो ये चांसेस हो सकते हैं। तो माइट इज मॉडल, तो जो सर्टेनिटी की सेंस ज्यादा बताता है, कहते हो सकता है कि इवेंट्स जो है वो कोशिश करे एडवांटेज लेने का। किसका? मैक्लेरी का। Because McCleary was praised very sincere and sober personality. Get him to smuggle in a chisel or two, or a rope, ladder, or dash dash dash. Just look at the meaning. यहाँ क्या हाईलाइट करना चाहते हैं गवर्नर कि हो सकता है कि वैंस मैक्लेरी का बेनिफिट उठाए। किस तरीके से? उसको कहे कि ऐसा कर, अरेंज कर चीजल। चीजल you will have to look at this particular point, ये लकड़ी के काम करने के लिए यूज किया जाता है। You have to look at that is the instrument used to cut the wood. यानी you have to look at the meaning of this particular word in a very sincere way. I think crystal clear, there is no doubt in that. तो कहते क्या पता ये इवेंट्स जो है मैक्लेरी को कहे कि तू ऐसा कर, अरेंज कर चीजल, एक चीजल या दो चीजल। मैंने कह दिया ना कि इंस्ट्रूमेंट जो कि लकड़ी को काटने के लिए यूज होता है, वुड को कट करने के लिए यूज होता है, तो एक या दो चीजल की डिमांड ना करें। और कहीं रोप लैडर की भी डिमांड ना करें। रोप लैडर यू आर एबल टू लुक, सीढ़ी होती है जिसपे रस्सियां लगी होती हैं, अगर वो लगा के वो बाउंड्री वॉल जो थी वो यार्ड की क्रॉस कर सकता था। और डैश, यानी कि यहाँ पे बहुत टेंशन में है गवर्नर इस पैराग्राफ में। तो अपनी थिंकिंग लेवल को यूज करके तरह तरह के पॉइंट सोच रहा है कि हो सकता है मैक्लेरी कोई बेवकूफ ना बना दे, उसका बेनिफिट ना ले ले, उसको कहे कि मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट अरेंज कर, रोप लैडर अरेंज कर, तो इतना नेगेटिविटी करके निकल सकता है। I think there is no doubt so far as second paragraph of page 75 is concerned. Now look at the next third paragraph.
sat up sharply. Governor sat up sharply. Here, this particular point highlights that the governor became more tense. बैठ गया. Sharply का मतलब होता है intention. यहाँ पे इस text के according. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have even used. Semicolon. But what about McClary? Interrogation. बड़ी डीप थिंकिंग कर रहा है यहाँ पे भी जो गवर्नर है और बहुत टेंशन में है, तो उसके एक्शन और रिएक्शन बता रहे हैं. So that is why this sentence is used. The governor sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. Now here, governor was thinking on that particular point that it was easy to take every weapon, every negative instrument from the cell of Evans. कि ये तो कहते कि श्योरिटी से हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल वेपन का यहाँ मतलब है, जो इंस्ट्रूमेंट जो कि जो पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं और नेगेटिव पर्सन जो है उसको नेगेटिव वे से यूज करते हैं कर सकता था, यानी कि इवेंट्स. तो गेट रीड होता है छुटकारा पाना. You have to look at this. Add it into the dictionary of your brain, dear students. Potential weapon यानी कि जो वेपन, जो इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिविटी के लिए यूज किया जाता है वो नेगेटिविटी के लिए यूज किया जा सकता है. Early part of the chapter you have studied about razor. नेल सीजर्स कहता ना कि ले लो इसे ले लो, ये पोटेंशियल वेपन्स होते हैं. हम लोग तो पूरी गारंटी से हर वेपन को, हर इंस्ट्रूमेंट को उसके सेल से बाहर निकलवा लेंगे जो कि वो यूज कर सकता था. तो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. यू विल हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगेन you in a very sincere way. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. तो कहते हैं यानी कि ये भी सिग्नल करता है 2 पॉइंट्स के लिए. यहाँ पे एक सिग्नल इस पॉइंट का ये भी आता है कि हमने जितने भी वेपन थे, यानी कि जो पोटेंशियल वेपन था, बाहर निकलवा लिया है कि अब इवेंट्स के सेल में कोई भी चांस नहीं है किसी भी नेगेटिविटी को क्रिएट करने का, उस पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं. तो नेल सीजर्स तक तो बाहर निकलवा ली थी उन्होंने. तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बट व्हाट अबाउट मैक्लरी? यहाँ पे जस्ट लुक एट द थिंकिंग लेवल ऑफ द गवर्नर. थिंकिंग कि मैक्लरी की गारंटी कैसे देंगे कि उसके पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे हुए और उसी से छीन के, मैक्लरी से छीन के इवेंस ने नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, तो ना कि नेगेटिव पर्सनालिटीज कैन डू एनीथिंग इन नेगेटिव एट एनी मोमेंट. बड़ी डीप थिंकिंग से सोच रहा है कि अगर हमने तो चलो गारंटी से सारे वेपन्स बाहर निकलवा लिए थे, या कुछ नहीं था जो यूज कर पाए वहां, लेकिन मैक्लरी के पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो अगर उन्हीं को इवेंस ने मिसयूज कर लिया तो I think you're crystal clear that McCleary was invigilator, was a priest. Now just look at what if, quite unwittingly, the innocent McCleary had brought in something himself. What if? क्या होगा अगर? What would be the consequence? Just look at the next. कि अगर quite unwittingly होता है, you have to look at this particular word in a very sincere way, unintentionally. अगर मैक्लरी के ने कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आया हुआ अपने साथ, यानी innocently or unintentionally, you are able to use this particular word. Synonym of unwittingly, I think crystal clear. The innocent होता है sober, sincere, dedicated. मैक्लरी had brought in something himself. अगर वो बेचारे मैक्लरी जी कुछ इंस्ट्रूमेंट लाए हुए तो नेगेटिविटी के लिए नहीं, यानी कि अपने एग्जाम से रिलेटेड,
कई बार कटर की जरूरत होती है एग्जामिनेशन में, कई बार सीजर की जरूरत होती है, वी आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, स्टेपलर की जरूरत होती है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कहते क्या होगा, क्योंकि गवर्नर को गारंटी नहीं थी कि ये एक सोबर फेलो है, यानी कि इवेंस, उनको लग रहा था कि हो सकता है कि सनसियर मैक्लरी से इंस्ट्रूमेंट छीन के नेगेटिविटी क्रिएट कर दे, because Evans was a negative fellow, a jackknife perhaps. And what if Evans held him hostage with such a weapon? Interrogation. Just look at the law, this particular sentence. So, first of all, note down the meaning of jackknife. But jackknife क्या होता है कि knife, ऐसा knife जिसका जो blade होता है that can be folded, जिसके ब्लेड को फोल्ड किया जा सकता है, उसको जैक नाइफ बोला जाता है। तो शायद जैक नाइफ होगा किनके पास, मैक्लरी के पास। एंड व्हाट इफ इवेंस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन? जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो क्या होगा अगर, होस्टेज होता है बेसिकली बंदी बनाने को बोलते हैं यहाँ पे इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, कि अगर इवेंस ने अटैक कर दिया उससे, फिर बंदी बनाने का मतलब यहाँ पे मैक्लरी पे उसी वेपन से, यानी कि जैक नाइफ से ही अटैक कर दिया इवेंस ने, तो क्या होगा? आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन द मीनिंग ऑफ होस्टेज डियर स्टूडेंट्स। तो यू हैव टू लुक एट कल्प्रिट जिसको बोला जाता है। लुक एट द नेक्स्ट। आई थिंक next is the governor reached for the phone. It was 9:12 a.m. So again, the governor reached for the phone. He wanted to call. तो इसीलिए फोन के पास गए गवर्नर जी। तो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, it was 9:12 a.m. At that moment, the time was 9:12 a.m. The examination was to be started at 9:15. I think you are crystal clear. Now, next step. Just look at the next step. The examinee. So, if we look at this particular word examinee, the examinee होता है the person who is going to appear for examination. जो पेपर देने वाला होता है उसको एग्जामिनी कहा जाता है। एंड द इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर बेटा ऑलरेडी आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, जो पेपर लेने के लिए ड्यूटी दे रहे होते हैं, had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McClary through the side door, "Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens." Just look at this. तो एग्जामिनी यानी कि इवेंट्स और जो इन्विजिलेटर थे, इनकी इंट्रोडक्शन हो चुकी थी। दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफेंस। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उसी पॉइंट पे जैक्सन केम बैक, जैक्सन वापस आए एंड शाउटेड टू मैक्लरी, और बहुत जोर से चिल्लाए, यानी मैक्लरी को इंस्ट्रक्ट किया उन्होंने बहुत लाउड वॉल्यूम में, थ्रू द सेल डोर, सेल डोर के थ्रू यू आर एबल टू लुक एट। तो क्या क्या शाउट आउट किया, कौन से वर्ड यूज किए, क्या जोर से बोल रहे थे वो हाई वॉल्यूम में? तो जस्ट लुक एट द वर्ड्स ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर? आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर हियर। जैक्सन वांटेड मैक्लरी टू जस्ट come outside of that particular cell. तो बाहर आओ 2 मिनट सर। यहाँ पे सिर्फ मैक्लरी को इंस्ट्रक्ट नहीं किया, उन्होंने स्टीफेंस को भी कहा, यू टू स्टीफेंस। कहते स्टीफेंस जी आप भी बाहर आओ।
I think crystal clear up to this particular point, there is no doubt. यानी कि एग्जामिनी और इन्विजिलेटर की इंट्रोडक्शन हो चुकी थी। उसी पॉइंट पे जैक्सन जी आए। जैक्सन ने मैक्लेरी को कहा कि आप 1 मिनट बाहर आओ, और स्टीफेंस को बोला कि आप भी बाहर आओ। आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। देयर इज नो डाउट सो फार एज this particular paragraph is concerned. Just look at Jackson quickly explained the governor's worries, and McCleary patiently held out his arms at shoulder level, whilst Jackson lightly frisked his clothes. Something hard here, sir. Just look at this paragraph. तो यहाँ पे जैक्सन ने मैक्लेरी और स्टीफेंस को क्यों बुलाया था? इस स्पॉट पे जैक्सन जो था यानी कि तलाशी लेना चाहता था। किसकी? मैक्लेरी की। तलाशी किसमें? कि इसके पास कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से वेपन्स हैं, कि he wanted to look at। ये तो बहुत सोबर पर्सनैलिटी थी। मैक्लेरी जी ने तो यूज नहीं करना था, मिस यूज कर सकता था इवेंट्स, गवर्नर को क्योंकि भरोसा नहीं था इवेंट्स पे। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन्ड द गवर्नर्स वरीज। जैक्सन ने जल्दी जल्दी में गवर्नर की टेंशन जो थी एक्सप्लेन की मैक्लेरी को। यानी कि क्या टेंशन, क्या थी गवर्नर्स वरीज? कि अगर मैक्लेरी के पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ और मिस यूज कर लिया इवेंट्स ने, तो यानी एक सिग्नल दिया जैक्सन ने मैक्लेरी को कि यानी हैंड्स अप, तलाशी यानी कि तलाशी होगी, तुम्हारी भी इंस्पेक्शन होगी, तुम्हारे को भी चेक किया जाएगा, तो हम जजमेंट करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है। I already told you the character trait of McCleary. He was very sober and sincere personality. He was priest. आसान नहीं होता priest बनना। और इस टाइम पे तो बहुत पायस ड्यूटी कर रहा था। इन्विजिलेशन ड्यूटी तो एक गॉड के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो इन्विजिलेटर का आता है, अगर एग्जाम में हम ड्यूटी दे रहे। तो एंड मैक्लेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स। तो उसने ऊपर कर लिए अपने हाथ, क्योंकि उसको तो डरना ही था कोई, क्योंकि वो गलत था ही नहीं। डरता कौन है? जो जिसने कुछ गलत किया हो या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर वो लेके आया होता नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए, तो वो तलाशी के लिए मना कर देता, अपनी इंस्पेक्शन करवाने से मना कर देता। तो गवर्नर की टेंशन सुनने के बाद मैक्लेरी ने बड़े शांत स्वभाव से अपनी बाजू ऊपर कर दी, शोल्डर लेवल तक ले गया। whilst जैक्सन lightly fixed his cloth। और उस टाइम पे whilst का मतलब होता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट। कौन सा मोमेंट की बात किया जा रहा है? जब यानी कि मैक्लेरी ने अपने शोल्डर जो थे, शोल्डर्स तक अपनी बाजू को लेके गया था, बाजुओं को लेके गया था। तो जैक्सन ने फ्रिस्क होता है तलाशी लेना, थोड़ी लाइट से उन कपड़ों की तलाशी ली, यानी कि तलाशी का मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग हार्ड है सर। तो सर यहाँ कुछ हार्ड लग रहा है। यानी जब इंस्पेक्शन कर रहा था, जब तलाशी ले रहा था जैक्सन, उसने कहा कि सर ये कुछ हार्ड सा लग रहा है। तो आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। My reading glasses, replied McCleary, looking down at the spectacle case. Now just look at the response of McCleary here. He replied that something hard. He wanted to highlight that. ये तो मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं। रीडिंग ग्लासेस होती है जो चश्मा होता है, रीडिंग के लिए लगवाया होता है, जो आई साइट ज्यादा पुअर नहीं होती तो रीडिंग स्पेक्ट्स लगवाए जाते हैं ताकि प्रेशर ना पड़े जब हम रीड करते हैं। तो कहते सर ये तो मेरी रीडिंग ग्लासेस है, स्पेक्टिकल्स है। रिप्लाइड मैक्लेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। जब वो ये सेंटेंस बोल रहा था, रिप्लाई कर रहे थे मैक्लेरी जी, और नीचे अपने स्पेक्टिकल केस की तरफ देख रहे थे। स्पेक्टिकल केस क्या होता है? जिसमें ऐसा केस, ऐसा बॉक्स जिसमें हम अपने स्पेक्टिकल रखते हैं यूज के बाद। I think there is no doubt in that. Jackson quickly reassured him, and bending down on the landing, thumb flicked the catches on the suitcase.
Just look at the things. Just look at this particular sentence, dear students. Jackson quickly reassured him, and bending down on the landing, thumb flick the catches on the suitcase. तो यहाँ इस लेवल पे रीअश्योरेंस दी जैक्सन ने मिक्लेरी को कि चलो कोई बात नहीं, रीडिंग स्पेक्ट्स तो वो यूज कर सकते थे जैक्सन, तो it was required for his duty. It was a basic requirement for invigilation duty. कोई बात नहीं. And bending down on the landing, thumb flick the catches on the suitcase. देखिए बेटा, फिर थोड़ा सा झुके जैक्सन जी. On the landing मतलब जमीन की तरफ, तो thumb flick the catches on the suitcase. Suitcase बेटा पुराने जमाने में ऐसे होते थे, बटन वाले होते थे, उसको थंब से पुश करके खोला जाता था. तो वो उन्होंने पुश किए ताकि सूटकेस में क्या है उसकी भी इंक्वायरी करें जैक्सन जी. उनकी जो फिजिकल जो इंस्पेक्शन थी वो तो कर ली थी, स्पेक्टिकल्स थे उनके, और पूछ लिया था ये हार्ड क्या है. अब सूटकेस की तलाशी होने जा रही थी, यानी वो ब्रीफकेस जो मिक्लेरी जी लेके आए थे, जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का पूरा मटेरियल था. तो I think you are able to look at the things. उन्होंने खोला, किन्होंने खोला? You will have to look at the things. Jackson ने झुक के, he had opened that particular suitcase. Thumb flicked. I think you are crystal clear up to this particular point. There is no doubt in that. Now just look at the next. Look at page number 76, dear students. He picked up each envelope in turn carefully and passed his palms along the surfaces and seemed satisfied. So, just look at the actions and reactions of Jackson. कैसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं जैक्सन जी ब्रीफ केस की? किनके ब्रीफ केस की? मिक्लेरी की. और ब्रीफ केस क्यों लेके आए थे? उसमें मटेरियल था जिससे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करना था, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट एंड एवरीथिंग. तो तलाशी कैसे ली जैक्सन ने? उन्होंने जितने भी एनवेल्प थे उसमें ब्रीफकेस में, हर एनवेल्प को उन्होंने उठाया और केयरफुली पास्ड हिज पाम अलोंग द सरफेसेस, और अपनी हथेली से टच करके ऑब्जर्व किया कि इसमें कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है, कुछ ऐसा मटेरियल तो नहीं है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ रॉन्ग वे बाय इवेंट्स, एंड सीम्ड सेटिस्फाइड. एंड आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ ब्रीफकेस ही वाज वेरी सेटिस्फाइड. He means Jackson. He riffled cursorily through a few pages of Holy Writ and vaguely shook the church times. All right, so far, but one of the objects in McCleary's suitcase was puzzling him sorely. Just look at the thing. First of all, note down the meaning, dear students. Riffled होता है यानी कि जब हम पेजेस टर्नओवर करते हैं, पन्ने पलट के देखते हैं. Cursorily, you have to look at the meaning of this particular word in a very sincere way. जब हम हल्के से पेज को उल्टा पुल्टा करके देखते हैं, पेज को टर्न करते हैं, पेज पलटते हैं, through a few pages of Holy Writ. Holy Writ बेटा नोट कर लो, ये बाइबल के लिए यूज किया गया है. तो बाइबल का जो दूसरा नाम जो क्रिश्चियंस हाईलाइट करते हैं उसको होली रिट भी बोलते हैं. So don't get confused with this particular these two words. Holy Writ means you have to look at the Bible. तो उन्होंने क्या किया? Just look at the things. बाइबल थी उनके ब्रीफ केस में. किनके ब्रीफ केस में? यानी कि मिक्लेरी के. तो उन्होंने बाइबल के जो पेजेस थे ऐसे पलट के हल्के हल्के पलट के देखे, and vaguely shook the church time. To look at the meaning. VAGUELY. Shook मतलब हिलाना. Vaguely होता है quickly. The church time. Early in the chapter you have studied कि उनके पास एक न्यूज़पेपर था, The Church Times, और उनको भी यानी उस न्यूज़पेपर को भी जैक्सन ने
सर्च आउट किया, हिला के देखा कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने यानी कि इंस्पेक्शन प्रॉपर वे से की, गवर्नर की इंस्ट्रक्शन पे जैक्सन ने ब्रीफकेस में पूरी इंक्वायरी की। बाइबल थी, बाइबल के भी पन्ने पलट के देखा, पेजेस को टर्न ओवर करके देखा धीरे धीरे से, और चर्च टाइम जो एक यानी न्यूज़पेपर था उसको भी हिला के देखा। ऑल राइट, सो फार सब ठीक था, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था उनके ब्रीफकेस में। यानी कि जैक्सन ने जो इंक्वायरी की, इट वाज डन इन 100% वे विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नर, तो ऑटोमेटिकली वेरी सेटिस्फाइड, कुछ नहीं था ऐसा नेगेटिव। लेकिन देखिए, जस्ट लुक एट द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। बट one of the objects in McCleary's suitcase was puzzling him sorely. Just look at this particular sentence. One of the, मैंने बताया ना, one of the मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे किनके, यानी कि मैक्लेरी के ब्रीफ केस में, सूटकेस में। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे एनवेल्प्स के लिए यूज किया गया है, बहुत सारा मटेरियल था एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का। लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट था उन सब जो ऑब्जेक्ट्स में से मैक्लेरी के सूटकेस में, जो कि सोरली होता है एक्सट्रीम लेवल, यानी जैक्सन को वो एक्सट्रीम लेवल पे पजल कर रहा था कि ये क्या है। यानी कि ब्रीफ केस की इंस्पेक्शन करने के बाद एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसको ऑब्जर्व करने के बाद आई थिंक जैक्सन वाज कंफ्यूज्ड। तो जैक्सन जो थे बहुत कंफ्यूज हो चुके थे एक्सट्रीम लेवल पे कि ये क्या है। जस्ट लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ, डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट, so inverted commas, would you mind telling me why you have brought this, sir? Interrogation and inverted commas closed. Just look at the query of Jackson. So here Jackson wanted to inquire from McCleary, do you mind telling me why you have brought this, sir? तो सर मुझे आप ये बताओगे सर ये क्या लेके आए हो, क्यों लेके आए हो? He held up a smallish semi-inflated rubber ring, such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You're thinking of going for a swim, sir? Now just look at this particular paragraph. तो कहते सर ये क्या है, ये क्या लेके आए हो आप अपने साथ? क्या था वो? यानी अपने हाथ में जैक्सन एक छोटी सी सेमी इन्फ्लेटेड होता है, आधी जो थी वो फिल्ड थी, किससे? आधी फूली हुई जिसको बोलते हैं रबर ट्यूब थी, रबर रिंग थी। आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट रिंग, खेलने के लिए रिंग होता है ना, सेमी मतलब आधा, और वो क्या था? सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। आई थिंक यू हैव टू लुक एट द थिंग्स। आधा रिंग था लेकिन वो भरा हुआ था, खाली नहीं था, वो इन्फ्लेटेड होता फूला हुआ। Such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. यानी कि ये छोटा सा जो बच्चा